See you. Okay. Okay. Has Satya sir joined us over here? Uh, Satya sir, have you joined over here? Are you there? Can you hear me? Can the student can the students hear me? Yes, sir. Okay. Okay. Um, just a second, please. Okay, fine. So this is a class that we are. I just want to know whether Satya can see me. Satya, সত্য আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। আর একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি, সেটাও দেখতে পাচ্ছেন তাহলে? হুম 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 হুম। ঠিক আছে, so everything is clear. আচ্ছা, ফাইন। So I'll start the class. আর আপনি যদি এই করেন, মিটিংটা রেকর্ড করেন, then you can do that. Okay? ঠিক আছে। আমি তাহলে স্টার্ট করছি, সত্য? হুম। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay. Okay, students, see, we have students who have joined over here. There are certain students who are class 10 pass students, and then we have certain students jara class 12 pass. For example, we have Devjani who has passed class 12, and we also have class 11 students over here. So I have selected a basic topic, a mock topic, a topic that would be common to all of you. Okay, a very basic topic, because since you people have just passed out, we have students who have just appeared for class 10. I mean, they are going to be promoted from class 10 to class 11, and then we also have students who have passed class 12. So because we have a plethora of varieties of students over here, so I've selected a topic that's going to be very very common to every one of you. Okay, so the topic that I've selected on purpose today is biomolecules. Okay, can you see I'm writing on the screen? Yes, sir. Okay, in case you're not able to see, or in case you're not able to understand something, then you inform that to me. I'll repeat that, or I'll write that again. Okay, so my question is, when I say biomolecules, now the first thing is, हम biomolecules आज क्यों पढ़ रहे हैं? Because देखो, जब हम biology start करते हैं, सब कुछ के पहले, before we start off with anything, what you need to know is what are these biological molecules? Because we know biology refers to the science of life, and what is life made up of, right? And how are chemical compounds and organic compounds related to life, right? That is why I've selected this topic, which will be common to all of you. So जब मैं biomolecules की बात करता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? What comes into your mind? Can the students tell me कि जब हम biomolecules बोलते हैं, what comes into your mind? क्या दिमाग में क्या आता है? What are biomolecules? Sir, the molecules that are produced by cells or living organisms. Okay, the molecules that are produced by the cells or living organisms. Okay, I'll take that. Anyone else with any other answer? Don't feel shy. I'll tell you something. I think the class should be very very interactive. तुम लोग अगर interact नहीं करोगे, then there is no point. Okay, so I want the class to be interactive. जिसको जो आता है वो तुम बताओ.
देवजानी, व्हाट डू यू थिंक? जब मैं बायोमोलिक्यूल्स बोलता हूं, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? नवजुक्ता, Sir, I don't know. you have not heard of biomolecules? Sir, I Okay, heard about it, but I have never known about thought it. of it. Okay, अगर ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन Sir, can बताने I की tell you कोई, something? ये शामो टेल मी. So the molecules which are obtained from living organism, especially the organic substance, they are called as the biomolecules. Okay, so can I say that biomolecules, everyone listen. So biomolecules, can I say, are the molecules that are biologically active? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स दैट आर बायोलॉजिकली एक्टिव? तो अभी शामो ने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये. Fine, of course, agar organisms में, if you're finding these molecules in organisms, then they have to be organic molecules. But you also have certain inorganic molecules which are considered to be biomolecules. Anyway, we'll come to that later. And then अभी प्रत्युषा ने we have प्रत्याशा. Okay, तो प्रत्याशा ने भी एक पॉइंट बताया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, so the molecules that the living organisms produce. Is that what you said, Pratyasha? Am I missing out on anything? No, sir. ओके, Said different. तुमने यही बताया था, हाँ ठीक है. तो हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी बताया है, करेक्ट है. ठीक है. सो बायोमोलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है. वो बना भी सकते हैं या उसको तोड़ भी सकते हैं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. ओके, नाउ बिफोर आई गेट इनटू द बायोमोलिक्यूल्स, अभी तुम लोगों को मैंने एक बात बताया है कि कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, या फिर जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ऑर्गेनिज्म तोड़ सकता है. सो व्हाट डू आई मीन, जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी से कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोल सकते हैं, कि तब कि जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एंड दैट इज मेटाबॉलिज्म. So every living organism should show the property of metabolism. Now, what is metabolism? Metabolism is the sum total of all the chemical reactions that are occurring in the body. So metabolism क्या है? Metabolism is the sum total of all the chemical reactions that are occurring in a cell. Okay? अब ये जो, जब मैं बोलता हूँ कि इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस. नाउ बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं एक सेल के अंदर, लेकिन उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है जिसको हम कहते हैं द सेल इज मेकिंग समथिंग. द सेल इज आइदर मेकिंग समथिंग और द सेल इज ब्रेकिंग समथिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेल आइदर कुछ एक चीज बनाता है, या फिर सेल कुछ तोड़ता है. अब कैन स्पेशली कैन द क्लास 10 पास स्टूडेंट्स, आई मीन the students who are moving from class 10 to 11 or the class 11 students, can you tell me, जो एक सेल के अंदर जब कुछ बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? what are these reactions known as? or anyone of you, can you tell me? Anabolism. एनाबॉलिज्म. तो फिर सेल में अगर एक चीज बनता है, व्हेन द सेल इज मेकिंग समथिंग, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एनाबॉलिज्म. ओके, एंड व्हेन द सेल इज ब्रेकिंग समथिंग, दैट इज नोन एज Catabolism. कैटाबॉलिज्म. Okay, so if the cell is making something, then that is known as anabolism, and if the cell is breaking something, then that is known as catabolism. Always remember this. ठीक है. तो फिर अगेन आई कम बैक टू बायोमोलिक्यूल्स. तो जब मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, तो फिर एक पॉइंट तो हम लोगों ने बोल दिया कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं. फाइन, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. एंड जनरली अगर मैं लिविंग organisms के point of view से बोलूं, so biomolecules are those molecules which are either the products of anabolism
or they are the substrates of catabolism. I mean, सेल आइदर उस चीज को बनाता है थ्रू द एनाबॉलिक पाथवे, या फिर सेल उस चीज को तोड़ता है with the help of the catabolic pathway. Have you all understood this? Have you all understood this? Any doubt? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे. Sir, can you repeat this once more? Which part? So this making and breaking, so the reactions going on in the cell. Okay, fine. Yes, I'll do that. So see, मैंने जैसे बोला कि एक सेल के अंदर you interact with me. एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं? What did I say? अभी बताया मैंने. मेटाबॉलिज्म. एब्सोल्युटली. तो सबको मिला के हम बोलते हैं इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. ओके, तो सबको मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. अब इस मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक सेल कुछ चीज बना सकता है, तो आइदर द सेल इज मेकिंग समथिंग और द सेल इज ब्रेकिंग समथिंग. सेल आइदर कुछ बनाता है या फिर उसको तोड़ता है. ठीक है, तो ये बेसिकली ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है. बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम उसको इन दो कैटेगरीज में, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें तो इन दो कैटेगरीज में हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब देखो, जब सेल कुछ बनाता है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और सेल जब कुछ चीज को तोड़ता है देन उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. क्लियर? तो अभी मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स हमने दो तीन डेफिनेशंस हमने अभी यहां पर बताए हैं कि बायोमोलिक्यूल एक तो है जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, और एक सेल के, लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है. ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी बताया है. तो मेनली इसका मतलब क्या है? एनाबॉलिज्म का मतलब हमने क्या देखा कि एक सेल कुछ एक चीज बनाता है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ बायोमोलिक्यूल. तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल वो बनाता है, दैट इज अ बायोमोलिक्यूल. एंड अगेन इस बायोमोलिक्यूल को तोड़ के जब वो छोटा छोटा चीज बनाता है, दैट इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल. सो कैटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट है और एनाबॉलिज्म का जो एनाबॉलिज्म का जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, और कैटाबॉलिज्म का भी जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, सब कुछ मिला के एवरीथिंग शुड बी कंसीडर्ड इनटू द बायोमोलिक्यूल्स. Have you understood this? मतलब जब हम छोटे छोटे, I'll repeat this again in case you have a problem. तो बेसिकली एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जोड़ के हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इस बड़े मॉलिक्यूल से हम आई ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ताकि एक सेल में हम एटीपी हमें वहां से मिल सके. तो यही तो है. तो फिर जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी जिसको यूटिलाइज कर सकता है एक सेल, उसको भी हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे. और ये जो बड़ा एक मॉलिक्यूल बना है उसको भी हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे. और जब एक कैटाबॉलिक रिएक्शन में ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको सेल तोड़ने की कोशिश करते हैं उसको भी हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे. और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस लार्ज मॉलिक्यूल, उसको भी हम बायोमोलिक्यूल कहेंगे. ठीक है. और इनफैक्ट ये जो एटीपी है जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल. तो एक सेल के अंदर एनी मॉलिक्यूल दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव और दैट इज बायोलॉजिकली वायबल, उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल. इज दिस पार्ट क्लियर? और मैंने मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम लोगों को क्यों बताया है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. उनमें से वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म. अगर एक सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं है, या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो फिर हम उस सेल को कभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे. इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Sir, clear. ओके.
अच्छा अच्छा ठीक है, हम बायोमोलिक्यूल्स फिर से मैं इसको और भी, जस्ट सेकंड प्लीज, और भी डिटेल्स में इसको बताऊंगा मैं तुम लोगों को। लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन आई से दैट आई हैव अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड हैव? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम Sir, लिविंग growth, ऑर्गेनिज्म, sir, growth, अच्छा, reproduction. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, Sir, response to stimuli. okay, something which is known as response to stimuli. Sir, What else? metabolism. Metabolism, very important. And and then of course there is something which is known as cellular organization. Now I'll not talk about these things in details, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यू नो वी आल्सो क्लासिफाई दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो चीज एक एक स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि इस ये अगर मैं एक रूम की बात करूं, जिस रूम में हम सब बैठे हैं, तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक रूम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तुम लोग क्या बोलोगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ रूम शुड हैव? आई मीन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ रूम? दिस इज व्हाट आई वांट टू से। Sir, enough space. ओके, इनफ स्पेस, फाइन, लेकिन उससे भी पहले चार दीवारें, चार चार छह दीवारें दीवारें। होनी चाहिए। हाँ शामू, बिल्कुल, अगर एक रूम में चार दीवार नहीं है, मतलब इफ आई एम नॉट क्लोजिंग इट फ्रॉम फोर साइड, तो फिर वो रूम नहीं बनेगा। लेकिन शामू का, मैं शामू से एक चीज पूछना चाहता हूँ, चार दीवारें डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन अगर फ्लोर नहीं है और अगर छत नहीं है, तो फिर हम इसको रूम कहेंगे क्या? नहीं सर, छह दीवारें बोला सर लास्ट में। नहीं, तो फिर बेसिकली चार दीवारें, एक सीलिंग और एक तुम्हारा फ्लोरिंग, ये सब होना चाहिए। ओके, यस और नो, डू वी एग्री? ये अगर यस नहीं सर। है तो फिर इसको हम रूम नहीं कहेंगे। सो दीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूम। लेकिन मे बी शामो जिस रूम में बैठा है वहां पर एक एसी है, वहां पर पंखा है, और मे बी एक स्विमिंग पूल भी है। आई एम जस्ट गिविंग यू ग्रॉस एग्जांपल्स, ओके, मे बी। लेकिन दोज आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डोंट डिफाइन अ रूम। अगर एक रूम के अंदर एसी नहीं रहता है तब भी उसको हम रूम कहेंगे, अगर एक रूम के अंदर लाइट नहीं है तब भी हम उसको रूम कहेंगे, राइट? बट हाँ, अगर एक रूम में लाइट है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, इस रूम, द एसी, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूम, क्योंकि अगर रूम नहीं है तो एसी हम बिठाएंगे कहाँ पर? लेकिन अ एसी और अ फैन और अ लाइट डज नॉट डिफाइन अ रूम टू बी अ रूम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूम। क्योंकि अगर रूम नहीं बनता है तो फिर सिमिलरली वहां पर हम एसी भी नहीं लगा पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगा पाएंगे, और वहां पर हम डेफिनेटली पंखा भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट डिफाइंस अ रूम टू बी अ रूम, देन अ एसी डज नॉट डिफाइन अ रूम, अ लाइट डज नॉट डिफाइन अ रूम, a mirror does not define a room, a bed does not define a room, बट व्हाट डिफाइंस अ रूम इज, हाँ, एक रूम में एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। तो वो एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, दरवाजा भी हो सकता है, खिड़की भी हो सकता है, कुछ एक बाहर से, ताकि लोग अंदर की तरफ आ सके, एक ऐसा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। एक दीवार, चार दीवारें डेफिनेटली होने चाहिए, और एक फ्लोरिंग भी होना चाहिए, और छत भी होना चाहिए। so that defines a room. So those are the defining characteristics, और उसके ऊपर जब हम दूसरे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड ऑन करते हैं, जैसे एक रूम में एसी होना चाहिए, बेडरूम में बेड होना चाहिए, यू नो मे बी किचन में एक स्लैब होना चाहिए जहां पर हम where I can keep the utensils, or where I can keep my gas, where I can cook. So these are things, then those are specific characteristics. Are you understanding what I mean to say? तो सिमिलरली अभी किसी ने बताया, समवन हैज टॉक्ड अबाउट ग्रोथ। सो कैन यू टेल मी, ये जो ग्रोथ है, इज इट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और इज इट अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, So it's an ग्रोथ इज, undefining characteristic. व्हाई डू यू से दैट, नबुजुक्ता?
So because even non-living things grow, like accumulation of dirt or other materials. So एब्सोल्युटली. this, हाँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम आज एक जगह पर जाते हो, वहां पर एक छोटा सा हिल है, राइट, और फिर मे बी 10 साल बाद जाते हो तो तुम देखोगे वहां पर डिपोजिशन होके ये थोड़ा जो प्लेस है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, देयर इज एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ दिस हिल, राइट. और मे बी 100 साल बाद अगर कोई जाएगा तो फिर उसको देखेगा कि उसका साइज और भी बढ़ गया है. सो ऑब्वियसली देयर इज अ फर्दर इंक्रीज इन साइज. इसका मतलब हम कभी भी वी कैन नॉट से कि ये जो यहाँ पर हिल था दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कैन नॉट से दैट. So growth, definitely it is a characteristic of a living organism, but it does not define an organism to be a living organism. Clear, everyone? yes, sir. Okay. Then the next thing definitely is कि जैसे growth can also be classified into two groups. One is known as intrinsic growth, and the next one is known as extrinsic growth. One is known as intrinsic growth, another one is known as extrinsic growth. इंट्रिंसिक मतलब एक सेल के अंदर जो ग्रोथ होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ. और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम किसको कहते हैं? बाहर के तरफ से जब एक कोई चीज ग्रो कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. अब देखो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो ग्रोथ है इट इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. It is a non-defining characteristic because even the non-living things they have the property of growth, and since the non-living things also have a property of growth, I don't consider growth to be a living characteristic. I mean, it defining characteristic. Sorry. लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब एक सेल के अंदर के तरफ जो ग्रोथ होता है, एक सेल के अंदर जो ग्रोथ है उसको उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ. एंड व्हेन आई से एक सेल के अंदर ग्रोथ होता है इसका मतलब आई कैन से दैट द सेल व्हाट इट इज डूइंग इज छोटे 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 ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक्यूमुलेट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है. मे बी बाहर से अगर हम इस सेल को तब देखेंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द ग्रोथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? मे बी बाहर से अगर हम देखें देन हमें बाहर से एक सेल को देखने से क्या लगेगा, नहीं ये तो साइज में नहीं बढ़ रहा है. लेकिन even if the cell is not growing in size, even if the cell is not growing in size, there are molecules that are being created inside the cell, newer molecules that are being created in the cell, and then I can say that since newer molecules are created in the cell and since the cell is creating newer things, it is growing intrinsically. That means intrinsic growth is happening. अब मैं तुम लोगों से अगर पूछूं कि intrinsic growth को हम एक और चीज के साथ synonymous कह सकते हैं. So can you tell me what is that one thing that intrinsic growth is synonymous with? Can you tell me? जब एक सेल कुछ चीज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? शामो. Come on, don't नहीं मतलब take. वो सर इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक बार बता देंगे तो मतलब थोड़ा इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलना मतलब आसान सेल होगा. के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब सेल कुछ चीजों को मिला के कुछ एक बड़ा चीज बना रहा है. सो मेरा मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, सो व्हाट कैन आई कंपेयर द इंट्रिंसिक ग्रोथ विथ? सर ग्रोथ मतलब अब डीएनए का ग्रोथ हो सकता है, आरएनए का ग्रोथ मतलब अरे रेप्लिकेट सो करके जो हाँ, ग्रोथ तो होता है. बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे? अगर सेल एक डीएनए बना रहा है या फिर सेल एक आरएनए बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड से रेप्लिकेशन, बना. नहीं, डुप्लीकेशन, अरे कॉमन लैंग्वेज में बोलो ना, एनाबॉलिज्म. तो इंट्रिंसिक एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म, तो ये अगर तुम लोगों को कभी क्वेश्चन आया कि इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम किस 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 दूसरे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कर सकेंगे, देन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन ऑफन बी कंपेयर्ड टू एनाबॉलिज्म. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि सेल जब अंदर से बढ़ता है मतलब सेल कुछ बना रहा है, नया चीज बना रहा है. सो अगर एक सेल नया चीज बनाता है मतलब आई कैन कंपेयर इट टू एनाबॉलिज्म. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट ओवर हियर? नो सर. ओके. ओके. फाइन. इसके बाद अच्छा, नेक्स्ट किसी ने अभी कहा कि रिप्रोडक्शन.
अब ये बताओ मुझे, रिप्रोडक्शन is it a defining characteristic or is it a non-defining characteristic? So it's a So non-defining defining. characteristic. Shammo is saying defining. Okay, Shammo No, ने so कहा, it's non-defining. ठीक है चलो दोनों का पॉइंट लेते हैं। शाम्मो ने कहा कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा उसको हम रिप्रोडक्टिव उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू शाम्मू। बट शाम्मू, सपोज तुम लोग तुम एक अपने फ्रेंड के घर गए हो या फिर पड़ोसी के घर गए हो, यू नो, दे आर अ मैरिड कपल और दे हैव डिसाइडेड नॉट टू हैव अ बेबी। शाम्मू, कैन यू लिसन टू मी? इफ यू कैन हियर मी देन यू विल Yes, इंटरेक्ट। sir. हाँ, तो तुम अपने पड़ोस में गए हो और वहां पर सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक तुम्हारा फ्रेंड है, या फिर कोई, नॉट अ फ्रेंड, मे बी यू हैव अ फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ है, हु हैव डिसाइडेड नॉट टू हैव अ बेबी। तो तुम उनसे जाके पूछते हो आपके घर में कोई बेबी नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं, वी डोंट वांट अ बेबी। तो तुम शाम को उनको जाके क्या कहोगे? ओ, आपके घर में बेबी नहीं है, मतलब आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा कहोगे शाम को? बिल्कुल भी नहीं सर, कैसे तो कह फिर, सकते हैं हम? तो कैसे कह सर सकते वहां हो पर शाम को? दो दो केस हो सकता है। अगर वो सर नहीं चाहे कोई बेबी लेने के लिए, सर वो एक कैरेक्टर हो सकता है। और एक सर स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है कि वो मतलब उसके अंदर कोई स्टेरिलिटी हो सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो हाँ, उसके बारे में कोई मतलब बेबी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बिल्कुल। नॉर्मल लिविंग तो ऑर्गेनिज्म ऑल टाइम रिप्रोडक्शन कर सकता है, और नहीं, रिप्रोडक्शन में नहीं, नहीं उसका शम्मो, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टाइगर और एक लायन का जो हाइब्रिड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अ लाइगर। ओके, अ लाइगर कैनॉट रिप्रोड्यूस, इट इज स्टेराइल, बट इट इज वेरी मच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन यू ऑल्सो हैव, यू नो, एक हॉर्स और, So worker bees. okay, yes, true, absolutely, yes, that is also a good example. And then you also have examples like, donkey or horse को अगर तुम combine करोगे, so mule is also sterile but it is very much a living organism. Are you understanding my point? तो फिर हाँ, अगर तुम मुझसे ये पूछो कि अगर organism living नहीं है तो क्या वो reproduce कर पाएगा? नहीं, वो reproduce नहीं कर पाएगा। लेकिन it is again a choice कि a living organism may choose to reproduce, may not choose to reproduce, and it may, जैसा तुमने अभी कहा कि it may also be sterile. And because even if the organism is sterile or even if the organism decides not to reproduce, it is still very much a living organism. And that is the reason why I consider reproduction not to be a defining characteristic. I suppose you people have understood. So, reproduction is one of the characteristics of a living organism, but it is not a defining characteristic of a living organism. Clear? Yes, Clear? sir. Okay. And then, uh, uh, you know, there are certain small organisms which are, especially the unicellular organism. तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक बैक्टीरिया है, तो एक बैक्टीरिया इतना छोटा सा एक बैक्टीरिया है, वो जब बढ़ता है, जब हम एक बैक्टीरिया के ग्रोथ की बात करते हैं, तब एक बैक्टीरिया इतना छोटा सा था और 6 घंटे बाद वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा हम कभी नहीं ऑब्जर्व करेंगे। So the increase in size does not confer the growth of a unicellular bacteria. लेकिन तो फिर हम एक बैक्टीरिया के केस में, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में हम, हाउ डू आई डिफाइन इट्स ग्रोथ? जब एक सेल बैक्टीरिया डिविजन डिवाइड, सर। यस, जब एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बनाता है, ये ईच ऑफ दीज बैक्टीरिया जब दे डिवाइड एंड क्रिएट फोर, सो दिस इज बेसिकली दे ग्रो इन प्रोग्रेशन, राइट? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बैक्टीरिया ग्रो करता है। एंड बिकॉज over here, in case of a bacterial growth, that means in case of a prokaryotic cellular growth, उनके केस में, और यही यही उनका ग्रोथ है और यही उनका रिप्रोडक्शन है, because they reproduce by binary fission. So binary fission is, the method of their growth of the population, and it is also the method of reproduction. So in case of a, unicellular organism, ये जो growth और reproduction है, they can be used, these terms can be used interchangeably. So growth, it is synonymous to reproduction in case of a unicellular organism.
बट बाकी केसेस में जनरली जब जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तब मैं इधर अंदरूनी ग्रोथ की बात करता हूं, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, और आई टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, आउट ऑफ विच जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है दैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, और जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है दैट इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ओवरऑल जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ओवरऑल जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, देन आई विल ऑलवेज कंसीडर ग्रोथ टू बी अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अगर कभी तुम लोगों का ये क्वेश्चन आता है, what do can you comment on intrinsic growth? Is it a living characteristic or is it a non-living characteristic? Then definitely I should consider it to be a defining characteristic. So intrinsic growth is a defining characteristic. Why? Because it is synonymous with what? It is synonymous with anabolism. Okay, that is why intrinsic growth, since it is synonymous with anabolism, it is often considered to be a defining characteristic. And on the other hand, you know, extrinsic growth, which is not synonymous with metabolism, it is considered to be a non-defining characteristic. And overall, growth is considered to be a non-defining characteristic. Anyway, तो ये चीजें मुझे तुम लोगों को बोलना था, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स, एंड देन लेट्स अगेन कम सर बैक जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये शम्मो, तो सर हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन मतलब कौन कौन चीज ले सकते हैं? सिर्फ बर्थ एंड डेथ? birth and death, no, I'll not consider birth and death. If you're giving birth to a new thing, that doesn't necessarily mean, okay, अब शामो ने एक चीज बोला है कि birth and death, I'll come to the answer after I talk about biomolecules. Okay, तब तुम लोगों को समझ में आएगा डेफिनेटली। अच्छा, तो मीन वाइल I'll take your question into account, शामो। अगर बाई चांस में इफ आई फॉरगेट देन यू अगेन रिमाइंड मी ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, ठीक है? ओके, तो चलो, मीन वाइल क्या हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, और एक सेल के अंदर क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स है उसको स्टडी करने के लिए एक इनिशियल पायनियर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, एक सॉरी, दे टुक अ मोटर एंड अ पेसेंट, दे टुक अ मोटर एंड अ पेसेल, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, दे टुक अ a piece of a tissue. This piece of a tissue, it can be a plant tissue. अगर मैं plant tissue की बात कर रहा हूं, then it can be a tissue like maybe the leaf, maybe the stem, or maybe the root, or it can also be a animal tissue, whatever you wish it to be. ये plant tissue भी हो सकता है, या फिर it can also be an animal tissue. सो फर्स्ट डू समथिंग, तुम पहले एक प्लांट टिश्यू लो या फिर तुम एक एनिमल टिश्यू लो, और उसके बाद तुम यहाँ पर क्या करोगे, इसके अंदर तुम ड्रॉप वाइज यू ऐड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। यू एड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टू दिस। तो तुमने क्या किया, एक प्लांट टिश्यू लिया या फिर तुम लोगों ने एक एनिमल टिश्यू लिया। अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं, देन यू कैन टेक लिवर, और यू कैन टेक अ किडनी, और यू कैन सिंपली टेक अ मस्कुलर पोर्शन, ऊपर की तरफ से एक मस्कुलर पोर्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का ले सकते हो। सो यू डू दैट। इसको लेने के बाद देन अगेन लेट्स कम बैक टू द एक्सपेरिमेंट। तो तुमने इसके अंदर कोई एक टिश्यू सैंपल को लिया है, और फिर तुम क्या करोगे, इसके अंदर तुम ड्रॉप वाइज यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हो, ऐसे ड्रॉप वाइज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हो, एंड देन उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिन्स करोगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो फिर जब तुम इसको ग्राइंड करते हो, देन व्हाट आई नाउ हैव, इसके बाद this looks like a slurry, एक स्लरी, एक थिक स्लरी जैसा कुछ एक चीज बन जाएगा। सो आफ्टर आई ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ मोटर एंड अ पेसल, व्हाट आई नाउ गेट इज अ स्लरी। तो मैंने क्या किया था, एक टिश्यू लिया है और उसको मैंने ग्राइंड किया है। सो आई ग्राइंड इट in trichloroacetic acid, and after I grind it in trichloroacetic acid, I get a thick slurry. Next स्टेप तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लरी यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारे पास है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट ओवर हियर। यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये जो स्लरी है, इस स्लरी को तुम एक काम करो, इसको यू पास इट थ्रू
फिल्टर पेपर। तो ये तुम यहाँ पर स्लरी, यहाँ पर एक फिल्टर पेपर ऐड करो। यू कैन हैव अ फिल्टर पेपर, और इफ यू वांट यू कैन आल्सो हैव अ फिल्टर क्लॉथ। ओके, सो यू कैन हैव अ फिल्टर पेपर और यू कैन हैव अ नॉर्मल फिल्टर क्लॉथ। ओके, फिल्टर क्लॉथ मतलब एक मसलिन क्लॉथ, या फिर घर में वो जो पुराना और बहुत पतला जैसा सूती का कपड़ा रहता है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो करने के बाद तुम क्या करोगे, ये जो हमारे पास पूरा जो ये जो मिक्सचर स्लरी बना था, इस पूरे चीज को तुम यहाँ पर रख दोगे। पूरा स्लरी यहाँ पर तुम ऐड कर दोगे, और देन तुम लोगों को दिखेगा कि कुछ देर बाद ऐसे ड्रॉप वाइज एक फिल्ट्रेट निकलेगा। तो ड्रॉप वाइज जो तुम्हारा नीचे आता है, दैट इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह जाता है, आई से इट इज रिटेन्ड, राइट, वो रिटेन्ड हो जाता है, और जो रिटेन्ड हो जाता है उसको हम कहेंगे रिटेंटेट। जो ऊपर रह जाता है उसको हम कहेंगे दैट विल बी नोन एज द रिटेंटेट, और जो नीचे आ जाएगा उसको हम कहेंगे द फिल्ट्रेट, राइट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, तो ये जो फिल्ट्रेट है उसको लेके साइंटिस्ट ने एनालाइज किया था, और ये जो रिटेंटेट है उसको भी लेके साइंटिस्ट ने एनालाइज किया था। अब ये जो फिल्ट्रेट है वहां पर देखा गया था, ये जो फिल्ट्रेट है उनका जो साइज है, द साइज इज लेस देन 1000 डाल्टन। उनका जो साइज है दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर जो फिल्ट्रेट है उसका जो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलता है उनका साइज अगर लेस देन 1000 है, तो जो रिटेंटेट में मिलता है उनका साइज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1000। इट शुड बी ग्रेटर देन 1000। ओके, सो जो रिटेंटेट में मिलता है ऑफ कोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन 1000, बट इज इट, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 1000, लेकिन एक्चुअली तुम्हें कितना साइज मिलता है यहाँ पर? अगर मैं बोलूं, अच्छा अगर मैं बोलूं इट शुड बी ग्रेटर, जस्ट अ सेकंड, इफ इट शुड बी ग्रेटर देन 1000, सो व्हाट डू आई मीन, कितना होना चाहिए? लेट्स सी, नमिता बताओ, व्हाट डू यू थिंक कितना होना चाहिए, इफ यू कैन हियर मी? So me, नवजुक्ता बताओ, या यू कैन से एनीवन, एनीवन। I don't know. So you कितना? asked me. अरे एनीवन, बताओ, Oh, तुम ही बताओ। sir, I don't know. अच्छा, लेस फिल्ट्रेट में लेस देन 1000 है, तो रिटेंटेट में कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1000 की बात करूं मैं, तो कितना कितना वैल्यू तुम्हारे दिमाग में आता है? So 1001, 1002. ओके, गुड। सो 1001, 1002, 1500, 2000, 3000, ये सब आता है हमारे दिमाग में। 1000 also। व्हाट? 1000 also। या ऑफ कोर्स 1000, या ऑफ कोर्स। ओके, सो 1000 एक बीच में अगर बैरियर है, तो फिर अगर मैं उन लोगों को जो फिल्ट्रेट है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज अगर लेस देन 1000 उनको मिलता है, तो फिर और बिकॉज दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? व्हाट डू दे नेम दिस एज? दे नेम दिस एज, बिकॉज दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे नेम दिस एज, एनी आइडिया? माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो ऊपर रह जाता है उसको उन्होंने कहा दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, जो नीचे आ जाता है, बिकॉज उनका जो साइज है, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर लेस देन 1000, एंड हेंस दे आर नोन एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। बट जो ऊपर रह जाता है, डेफिनेटली दे हैव अ साइज ग्रेटर देन 1000, और उसको उन्होंने कहा मैक्रोमोलिक्यूल। अब जब मैंने तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों ने मुझे बताया कि ये जो ग्रेटर देन 1000 की मैं बात कर रहा हूं, तो ग्रेटर देन 1000 मतलब कितना? 1001, 1002, 1003, 1200, 1500, 2000, 3000, ये सब तुम लोगों ने ही मुझे बताया। लेकिन एक्चुअली कितना मिलता है? हु विल टेल दिस टू मी? शामो और देवजानी, तुम बताओ, और नोमिता, तीनों में से कोई एक जन बताओ।
एक्चुअली कितना मिलता है? सर इस इनमें से सर एक एक्सेप्शन है जो सर इस रिटर्न टेस्ट में मिलता है, वो सर हम बता सकते हैं हाँ, तो कि रिटर्न डेट में मतलब जो साइज है वो कितना मिलता है तुम लोगों को? मतलब चाहिए तो मतलब हाँ 1000 के से बड़ा, लेकिन सर लिपिड भी मिलता है जो सर एक नहीं 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 नहीं, माइक्रो मैं मॉलिक्यूल उसकी बात नहीं कर है। रहा हूँ, दैट इज एन एक्सेप्शन, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल जनरल हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। पता नहीं सर। शाम वो कह रहा है पता नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर नीचे जो मिलता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमें मिल रहा है 1000 डाल्टन्स या उससे कम, ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली एक्सपेक्ट करेंगे, जैसा अभी तुम लोगों ने कहा कि 1001, 1002, 1500, 2000, 3000 ऐसा कुछ मिलना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली 10,000। हाँ, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1000, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 1000, लेकिन बीच में कुछ नहीं मिलता है, मतलब बीच में मिलता तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये जो थाउजेंड्स है और 1000 से लेके 10,000 तक, इस बीच में एक एक्लिप्स है। सो देर इज ए एक्लिप्स, ये छुपा हुआ रहता है, देर इज ए एक्लिप्स। सो व्हाई डज दिस हैपन? दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, कि हमें 1000 मिला है इन द माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, और इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में हमें मिलेगा anything greater than 1000. But what do we actually get? We actually get something which is around 10,000. तो इतना ज्यादा है वो। तो बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब 1000 से लेके 10,000 तक, ये कहाँ गए? गुम हो गए? क्या हुआ? What happens to them? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आया है कि नहीं बताओ, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Did you all understand what Can I'm you saying? repeat it once again? ओके, आई रिपीट दिस वंस अगेन, कि हमने ये चीज पास किया है, आई हैव पास दिस एंटायर थिंग थ्रू द फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट सॉरी थ्रू द फिल्टर पेपर, एंड देन जो फिल्ट्रेट है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज होता है लेस देन 1000। सो वी वुड एक्सपेक्ट जो ऊपर है, दैट उनका जो साइज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1000। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्चुअली में कितना मिलता है? एक्चुअली में हमें मिलता है 10,000 के करीब मिलता है, मतलब 9,000, 10,000, इस रेंज में मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि 1000 या 1000 से कम जो है वो माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में मिल रहा है, और जो रिटेंटेट है वहां पर हमें क्या मिल रहा है? वहां पर हमें मिल रहा है 10,000, 9,000, मतलब काफी ज्यादा। तो बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब इमीडिएटली 1000 से बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू देम? क्यों नहीं? व्हाई डू वी नॉट ऑब्जर्व देम? ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से। क्वेश्चन सिनेरियो समझ में अच्छा, आंसर की जरूरत नहीं है, सिनेरियो तुम लोगों को समझ में आया है? हैव यू अंडरस्टूड द सिनेरियो? कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? Yes, एक, sir. हाँ, एक गैप है यहाँ पर, मतलब 1000 से कम मिल रहा है, अगेन 10,000 के करीब मिल रहा है, तो बीच में एक एक्लिप्स है। आर यू रियलाइजिंग दिस थिंग? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। ओके, अच्छा, Sir, ऑदरिश यू यस सर। eclipse. Sir, एक्लिप्स eclipse मतलब, one. I didn't understand. एक्लिप्स वर्ड का मतलब है छुपा हुआ। मतलब ये जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 1000 से लेके 10,000 के बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, ये कहां पर छुप गए हैं? क्यों नहीं मिल रहा है ये? अच्छा, यहाँ पर देर इज अनदर स्टूडेंट ऑदरिश, he has just joined. Are you understanding, ऑदरिश? ऑदरिश घोष? Yes, sir. Yes. Okay, if you don't understand then just let me know. Okay, fine. Acha, I'll just also I would also like to ask, we have Deyashini. Deyashini, is that how you Yes, pronounce? sir. Okay, then we have Megha. Uh, Yes, sir. Moumita, Nobojukta is interacting. Pratyasha, Shamu is also interacting. तो जो interact नहीं भी कर रहे हो, तुम लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, I hope you are understanding. Yes, sir. Okay, in case you don't, then you ask me again. तो ये है एक सिनेरियो, कि ऐसा एक सिनेरियो बना है। अब ये सिनेरियो हुआ क्यों है? नाउ लेट मी कम टू द आंसर ऑफ दिस।
ये जो डिफिकल्ट एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट क्यों हुआ है, उस चीज को हम स्टडी करेंगे अब नेक्स्ट। लेट्स हैव अ लुक। तो देखो, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोज मेरे पास एक माइक्रोमोलिक्यूल है, जो इतना छोटा सा एक माइक्रोमोलिक्यूल है। लेट मी ड्रॉ दिस, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है। दीज आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स, कैन यू सी दिस? ओके। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल कैसा होगा? ऐसा, इतना बड़ा बड़ा कुछ मॉलिक्यूल है। यस और नो? डू वी ऑल अग्री? Yes, sir. So these are micro, sorry, these are micro, and then हमें लगता है कि these should be the macromolecules. But is that the scenario? Can I ask this to Shambhu? बताओ तो, is this the scenario? ऐसा होता है क्या? हाँ जी सर, क्वेश्चन सर और एक बार बताओ। क्वेश्चन है, शामो स्क्रीन की तरफ देखो। अगर मेरे इफ दीज आर माई माइक्रोमोलिक्यूल्स, देखो ऐसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें क्या लगता है मैक्रोमोलिक्यूल क्या होगा? उसी का एक लार्ज वर्जन होगा। मतलब वही जो मॉलिक्यूल है जो साइज में छोटा था, वैसा ही एक दूसरा लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, वी ऑल एक्सपेक्ट दिस, यस और नो? लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? अगर होता है तो आप बोलो हाँ, और अगर नहीं होता है तो बोलो नहीं, ऐसा नहीं। मतलब सेम कैटेगरी का आप बता रहे हैं? कैटेगरी की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू कैटेगराइज इट, आई जस्ट नीड टू नो द साइज। नो सर। नो? तो फिर क्या होता है शम्भू? अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है? ओके, शामो ने आंसर तो खैर करेक्ट दिया है, रीजन नहीं बताया है। तो बेसिकली अगर ये मेरा एक, ये देखो येलो कलर का मैंने डॉट दिया है, ये अगर एक मेरा माइक्रोमोलिक्यूल है, हमारे दिमाग में हम सोच लेते हैं एक मैक्रोमोलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। मैं बहुत ग्रॉस जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा नहीं है, सिनेरियो कुछ अलग ही है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या होता है, देखो हमारे सेल में बहुत सारे ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे, इफ आई कैन से सो। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल होगा, द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, but rather a macromolecule is many micromolecules joined together, like this. यस सर। Are you understanding the point? तो मैं हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसा, there is a strange situation कि if I can say that if the micromolecule is a monomer, then a macromolecule, it is a polymer of these monomeric units. Have you all understood this? If not, then tell me, I'll repeat again. Sir, can you repeat this last part, monomer part? Yes, I will repeat this again. Okay. So देखो, मैं एक नया स्क्रीन ले रहा हूं। तो देखो, अगर ये मेरा एक मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है, देखो ये सारे मेरे पास बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, है कि नहीं? ठीक है। और हम क्या सोचते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कैसा होगा? एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा जो काफी बड़ा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। And what is the reality? Now I'll write over here, these are micromolecules. We expect macromolecules to be like this. But is it like this? No. What is the reality? In reality, एक macromolecule, it is something like this. कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे micromolecules रहेंगे, and these micromolecules are going to be joined. These micromolecules are going to, sorry, change this. ये जो micromolecules हैं, they will be joined with the help of some linkage.
ये जब ज्वाइन होता है, ये जो पूरा एक बड़ा सा एक यूनिट बना, इसको हम एक मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. ओके. तो दिस, ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल. ये पूरा चीज लेके एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. सो दैट मीन्स ये जो छोटा मॉलिक्यूल है मेरा यहाँ पर, विच इज माइक्रोमोलिक्यूल, जिसका साइज अगर 1000 है, तो बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स को जब हम जोड़ेंगे उसका साइज कितना आएगा? ऑब्वियसली 10,000 या उससे ज्यादा आएगा, उस रेंज में आएगा. अगर कुछ ऐसा होता, अगर इफ इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, तो फिर 1001 से लेके कुछ भी हो सकता था. एनीथिंग ग्रेटर देन 1000, थोड़ा सा भी ज्यादा होता उसी को हम मैक्रोमोलिक्यूल कह देंगे. लेकिन सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है. सेल के अंदर क्या होता है, ये जो एक एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है, द माइक्रोमोलिक्यूल्स दे जॉइन वन आफ्टर द अदर एंड दे गेट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल. इज दिस सिनेरियो क्लियर टू यू? अगेन टेल मी. Yes, sir. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ठीक है. तो कैन आई से, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि मोनोमर और ये समझ में नहीं आया. तो अगर मैं माइक्रोमोलिक्यूल को अगर मैं मोनोमर कहूं, तो जब बहुत सारे मोनोमर्स एक के बाद एक के बाद एक जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर. Polymer. So I can call the macromolecules to be the polymers of these monomers. Yes or no? So मैं माइक्रोमोलिक्यूल्स को मोनोमर कंसीडर करूंगा, और जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसको मैं माइक्रोमोलिक्यूल का ही पॉलीमर कंसीडर करूंगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ओके, फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन. अच्छा, अब मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है कि जब मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूँ कि एक सेल के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो कैन यू गिव मी सम नेम्स? कुछ कुछ नेम्स बताओ मुझे. व्हाट आर द थिंग्स दैट कम इनटू योर माइंड? माइक्रो का सर. हाँ, कुछ भी सब मिला के बताओ शाम. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अच्छा, रुको मतलब रुको 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 रुको. कार्बोहाइड्रेट कहा शाम ने? बाकी सब भी बोलो. इस कैटेगरी में तुम लोगों को और क्या नाम पता है बताओ. शाम ने प्रोटीन भी कहा है, तो मैंने प्रोटीन भी लिखा है यहाँ न्यूक्लिक पर. एसिड्स अच्छा, न्यूक्लिक एसिड. और लिपिड्स. अच्छा, लिपिड्स, फैट्स. यस. फिर और क्या पता है? Water. ओके, गुड. वाटर. मिनरल्स. वेरियस सॉर्ट्स ऑफ मिनरल्स, आयंस. ओके. एंड come on, you people know this. Come on, I'm expecting more names. Tell me please some more names. Amino acid. Amino किसमें? acids. Yes, absolutely, amino acids. Good. सर अमीनो एसिड तो आपका प्रोटीन के अंदर होगा ना, जब सेम कैटेगरी का नहीं तो. नहीं नहीं, wait, amino acids. Then देन सर आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब भी हो सकता है. उसको हम क्या कहेंगे शम्मू? उसको हम क्या कहते हैं? तुम तो स्पेसिफिक एग्जांपल बोल रहे हो. कॉमन कैटेगरी अगर मैं बोलूं तो मतलब कार्बोहाइड्रेट से बोलेंगे, मतलब हेक्सोस बोलेंगे. मोनोसैकेराइड्स. हेक्सोस. मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स. यस, न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये सारे नाम उभर के आते हैं जब भी मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूँ एक सेल के अंदर. ये सारे नाम, और इसके अलावा भी काफी और भी नाम है. तो विल ग्रेजुअली सी दैट. टुडे इज Sir, जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ribosomes. ओके, राइबोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स. Pratyusha, I'll tell you something. Ribosome क्या है? Ribosomes are these are structures made up of RNA and proteins. These are ribonucleoproteins. These are semi-organelles that are found inside the cells. Okay, तो ये जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो one of the type of nucleic acid is RNA. और ये RNA और प्रोटीन मिलके, some amount of RNA and some amount of protein मिलके सेल के अंदर राइबोसोम बनाता है. That is not a molecule.
Okay, ribosome is not a molecule, but fine. I hope I have, uh, uh, I could explain what a ribosome is. Yes, Okay. sir. Yes. Okay. अच्छा, तो ये सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। चलो अब इन्हीं नामों को हम थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम वापस आते हैं उसी एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहां पर देखो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये मोटर पेसल लिया और मोटर पेसल के अंदर मैंने एक टिश्यू सैंपल को ट्राइक्लोरा एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया और उसको फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको फिल्टर किया। ओके, मैंने उसको अब फिल्टर किया। तो जब मैं इसको इस इस चीज को मैंने फिर लेके फिल्टर किया, तो मुझे यहाँ पर दो फ्रैक्शंस मिले हैं। वन इज, जो नीचे आता है उसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। Filtrate. फिल्ट्रेट। वेट, I don't know why this is not writing. अच्छा ये हैंग हो गया क्यों? या इट इज नोन एज द फिल्टर। और जो ऊपर रह जाता है बिकॉज वो रिटेन्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेंटेड। इट इज नोन एज द रिटेंटेड। फिल्ट्रेट। अच्छा, पूरे चीज को मैंने किस चीज के अंदर डिसॉल्व करके फिर फिल्टर आउट किया है, अभी बताया मैंने तुम लोगों को। एसिड। कौन सा एसिड? ट्राइक्लो एसिटिक एसिड। Trichloroacid. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो तुम मुझे बताओ ये जो फिल्ट्रेट है और ये जो रिटेंटेट है, मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि कौन सा एसिड सॉल्युबल है और कौन सा एसिड इनसॉल्युबल है, तुम लोग मुझे क्या बताओगे? ये सर जो एसिड सॉल्युबल है आपका फिल्ट्रेट और एसिड इनसॉल्युबल है आपका रिटेंटेड। यस, फिल्ट्रेट इज एसिड सॉल्युबल and this retentate is acid insoluble. डेफिनेटली, क्योंकि एसिड के साथ मिक्स होके जो नीचे गिर पाता है, इसका मतलब वो दैट इज द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो एसिड के साथ सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता है वो ऊपर रह जाता है। ओके, और फिर हमने नेक्स्ट देखा है कि ये जो फिल्ट्रेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज कितना होता है? लेस देन 1000 डाल्टन। less than 1000. लेस देन 1000। और जो रिटेंटेट है इट शुड बी ग्रेटर देन 1000, बट मिलता कितना है? अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 10,000. 10,000। अप्रोक्सीमेटली 10,000। और ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू आई कॉल देम? Micromolecules. So micromolecules. एब्सोल्युटली, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और इनको हम क्या कहेंगे? Macromolecules. Macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इनमें से कौन सा विच वन इज योर मोनोमर एंड विच वन इज द पॉलीमर? So the micromolecules Micromolecules. are the monomers and the macro one are the polymers. ओके, सो आई विल राइट हियर, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, क्या लिखूं? Monomer. और इसी मोनोमर का पॉलीमर है द रिटेंटेड। रिटेंटेड मतलब जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट टिल हियर? No, sir. ओके, आई होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट ओवर हियर। अच्छा, अब जैसे शामो ने कुछ एग्जांपल्स या तुम लोगों ने भी कुछ एग्जांपल्स मुझे बताए हैं, तो अब बताओ शामो, एक पहले जैसे तुमने मुझे बताया कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीमर। कुछ भी पकड़ लीजिए, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, तो सेल्यूलोज, स्टार्च, वी विल कंसीडर दिस टू बी व्हाट? पॉलीसैकेराइड। पॉलीमर्स। पॉलीसैकेराइड। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे शामू ने अभी एक एग्जांपल दिया कि स्टार्च। ठीक है,
तो इसका जो मोनोमर हमें मिलेगा, रिस्पेक्टिव मोनोमर जो हमें फिल्ट्रेट में मिलेगा, वो क्या होगा? इट विल बी अ मोनोसैकेराइड। यहां पर मिल रहा था पॉलीसैकेराइड, और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में उसी का मोनोमर हमें मिलेगा, विच इज द मोनोसैकेराइड। और अगर हमें यहां पर ऊपर अगर हमें स्टार्च मिलता है, तो फिर नीचे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। यस, गुड, we'll get glucose over here, fine। तो ये एक एग्जांपल हम लिया है। नेक्स्ट, जैसे अभी किसी ने ऑलरेडी बताया है कि someone has talked about proteins, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स है, these are the polymers of what? एमिनो इसको एसिड्स। amino अमाइनो acids. एसिड्स। These are the polymers of amino acids. Next, और एक है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। And nucleic acids are the polymers of nucleotides। न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, Nucleotides. यस, इसका स्ट्रक्चर हम काफी डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब कुछ के अलावा हमारा यहाँ पर रिटेंटेट के यहाँ पर और एक चीज मिलता है, और वो क्या है? द नेक्स्ट थिंग दैट यू गेट ओवर हियर इज अ लिपिड। You also get lipids in the acid insoluble retentate fraction। लेकिन मैं अभी इस लिपिड के बारे में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट लिपिड्स, ओके। जैसे लेट्स कंसीडर दिस। ये जो लिपिड्स है, पॉइंट नंबर वन, दे उनका जो साइज है, हमें क्या पता है कि अगर एक मैक्रोमोलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल होना पड़ेगा, देन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इट नीड्स टू हैव? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक मैक्रोमोलिक्यूल का? ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन इसका वेट। ग्रेटर देन 1000 डाल्टन्स होना चाहिए। अब मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में लिपिड्स का जो साइज है, that is not greater than 1000, it is less than 1000। उसका साइज इट्स अराउंड 700 to 800 डाल्टन्स। उसका जो साइज है, उसका साइज इज अराउंड 700 to 800 डाल्टन्स। नेक्स्ट जो थिंग है, ये जो लिपिड्स है, हम अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल का और एक क्या फीचर हम लोगों ने पढ़ा है? अभी पढ़ा है, अभी समझाया मैंने काफी डिटेल्स में। पॉलीमर्स और मोनोमर्स। Polymers, so the macromolecules need to be polymers। True macromolecules that we find inside the cell, they are actually polymers। But ये जो तुम्हारा लिपिड है, they are not polymers। they are not polymers। तो उनका साइज भी ज्यादा नहीं है, और वो उनका मतलब their nature, that means they are not polymers। they are not polymers, okay। so लेकिन फिर भी you find lipids in the macromolecular fraction। So I will consider to be lipids to be false macromolecules। Lipids को हम कहेंगे, the lipids are false macromolecules। They are not true macromolecules। Are you understanding this? क्यों? क्योंकि उनका साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और वो पॉलीमर्स भी नहीं है। लेकिन अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है कि अगर इवन इफ दे आर फॉल्स, इवन दो दे आर फॉल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाई आर दे फाउंड इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन? वो फिर हमें माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों नहीं मिलता है? क्यों हमें वो चीज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में मिलता है? ये मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है। लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये आंसर देना तुम लोगों के लिए उतना इजी नहीं होगा, आज नहीं होगा। सो टुडे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन नॉट आंसर। तो मैं ही ये आंसर तुम लोगों से वापस पूछूंगा, एक दो क्लासेस बाद। आई विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन टू यू। मीनवाइल, जब मैं एक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा हूं, या फिर मैंने जैसे बोला कि ये मोनोमर्स जुड़ के एक पॉलीमर बनता है, तो वो कैसे पॉलीमराइज होता है, एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं तुम लोगों को आज प्रोटीन का एग्जांपल देता हूं कि कैसे अमाइनो एसिड्स जुड़ के कैसे प्रोटीन्स बनते हैं। ये थोड़ा सा आज हम पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट थिंग जो मैं बताऊंगा आज इसी के साथ, कि एक लिपिड्स को मैंने क्या कहा कि एक लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। तो एक लिपिड बाकी पॉलीमर से अलग कैसे है, ये मैं तुम लोगों को बहुत ब्रीफली, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ओके। तो पहले चलो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया
कि चीज क्या हो रहा है, ये जो मोनोमर है, ये जो पॉलीमर है, ये क्या सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आइडिया ये आइडिया देने के लिए आई जस्ट वांट टू ड्रॉ सर्टेन स्ट्रक्चर्स। तो देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास है और कार्बन का वैलेंसी क्या है 4, मतलब कार्बन के 4 हाथ हैं। Four. यस। अच्छा एक पॉइंट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पेशली शायद ये जो क्लास 11 में तुम लोग एंटर कर रहे हो, शायद तुम लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक कार्बन, जब एक कार्बन सेंट्रल कार्बन के ये जो 4 हाथ होते हैं, इन चारों हाथों में जब वो अलग अलग चीजों को पकड़ के रखता है, तो फिर उस कार्बन को हम कहते हैं अ काइरल कार्बन। Chiral carbon. When a central carbon is attached with 4 different substituents, when there are 4 different substituents that are attached to a central carbon, उस कार्बन को हम कहते हैं it is known as a chiral carbon। ठीक है। और इस chiral carbon की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है सब्सिक्वेंट क्लासेस में बोलूंगा, आज नहीं बताते। अच्छा अब देखो, अब अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों बोला जाता है। देखो ये जो कार्बन है और उसके जो 4 हाथ हैं, उनमें से एक हाथ में देर इज अमाइनो ग्रुप। देखो एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरे हाथ में एक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बिकॉज इट हैज अमाइनो ग्रुप एंड इट ऑल्सो हैज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसीलिए इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्लियर एवरीवन? ओके। इसके अलावा जो बाकी 2 हाथ हैं, एक हाथ में हाइड्रोजन फिक्स रहता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, उनमें 20 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और ये जो पोजीशन है यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा आर। आर ग्रुप रिप्रेजेंट्स अ सबस्ट्रेट। एंड जैसा मैंने तुम लोगों को कहा कि देर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, तो हर अमाइनो एसिड में ये जो आर ग्रुप है ये अलग अलग रहता है। देर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ आर ग्रुप्स। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं, बताओ मुझे। एक अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं, टेल मी। एनी डाउट ओवर हियर? No, sir. ओके। So why do we say amino acids this one? अच्छा हाँ हाँ हाँ, हु इज आस्किंग दिस? इसको पूछो, हु आस्क्ड? Sir, Pratyasha. Pratyasha. Okay, Pratyasha, can you see this? I'm highlighting this with a green pen. तो ये वाला जो ग्रुप है अमाइनो एसिड में, ये क्या ग्रुप है? NH2 is a amino group. It is a amino group. और ये जो COOH ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है? It is a carboxylic acid group. So because एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों रहते हैं, इसीलिए इसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। तो अब हम देखेंगे कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे जुड़ता है टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहां पर क्या होता है, आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत सिंपली मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा देखो, ये देखो यहां पर मैंने कार्बन लिखा है, एक साइड में मैंने NH2 लिख दिया है, और दूसरे साइड में क्या है, बोलो Sir, अभी बताया मैंने। carboxylic acid. COOH। फिर मैं और एक अमाइनो एसिड यहां पर लिख रहा हूं, उसका इस साइड में मैंने NH2 ग्रुप लिखा है, और इस साइड में अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब बेसिकली, और हाँ ऊपर नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे
ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे एक, यहाँ पर भी ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे यहाँ पर एक R ग्रुप है, वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ये सब है। अब क्या होता है बेसिकली, यहां पर जो OH है और ये जो हाइड्रोजन है, ये मिलके पानी बनाता है। तो टुगेदर दे फॉर्म वाटर, और ये पानी यहां से निकल के बाहर चला जाता है। समझ रहे हो? मैं फिर से दिखाऊं इसको। देखो यहां पर क्या है, यहां पर यू हैव OH और यहां पर यू हैव H। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या होता है, ये दोनों मिलके यहां से पानी होके निकल जाते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? Yes, sir. ओके, और तब क्या होता है, ये जो तुम्हारा CO है और ये जो N है, इनमें एक बॉन्ड बन जाता है। एंड दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है विच इज नोन एज द CONH बॉन्ड। तो देखो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे जुड़ा है, विद द हेल्प ऑफ CONH बॉन्ड। और ये CONH बॉन्ड कैसे बना है, जब CO के यहाँ से OH और NH के यहाँ से H, यहाँ से पानी जब निकल जाता है, then a CONH bond is formed and this bond is known as the peptide bond. The linkage is a amide linkage. Okay, I'll repeat this once again. मैं फिर से ये तुम लोग को दिखा के रिपीट कर रहा हूं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं। सपोज इस साइड में मेरा COOH है और इस साइड में मेरा NH2 है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है ऐसे sorry, let me draw it like this. COOH, और फिर यहाँ पर है NH2, फिर यहाँ पर तीसरा अमाइनो एसिड है COOH NH, लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया मेरा अमाइनो एसिड। और हम लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड में यहाँ पर एक H होता है, एक R होता है, यहाँ पर भी एक H होता है, एक R होता है, H होता है, R होता है। मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल को थोड़ा उल्टा करके लिखा है, समझ रहे हो एवरीवन? आर यू एबल टू गेट दिस? और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पानी निकल जाता है, देखो ऐसे, यहाँ से पानी निकल जाता है, यहाँ से ऐसे पानी निकल जाता है। तो जब यहाँ से पानी निकल जाएगा, लेट मी रब दिस ऑफ। और जब पानी निकल गया, ये कैसे जुड़ता है, ये जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ CONH बॉन्ड। फिर ये अमाइनो एसिड भी इसके साथ कैसे जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ CONH बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर? सेम थिंग है, ये चीज सेम है। एक अमाइनो एसिड है, वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ रहा है, फिर वो तीसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ रहा है। सो दिस इज हाउ द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, द पेप्टाइड बॉन्ड। इज दिस क्लियर? यस और नो? टेल मी। बेसिकली इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा।
Can you hear me? Am I audible or am I not audible? ये से ऑडिबल है। ओके, Audible, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझे हो तो कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज मेरे पास बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकेज बिटवीन देम, और जुड़ के एक बड़ा सा पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है जो ग्रेजुअली फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर लेता है और जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। दिस इज हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म। एक के बाद एक बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इस तरीके से जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनता है। क्लियर एवरीवन? लेकिन मैंने अभी तुम लोगों से कहा कि लिपिड्स अलग है, सबसे अलग है। तो जस्ट जस्ट जैसे हमने देखा कि अमाइनो एसिड जुड़ के ऐसे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, तो उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स को अगर हम मोनोसैकेराइड से रिप्लेस करेंगे तब हमारा पॉलीसैकेराइड बनेगा। अगर हम एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड तब हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। हाँ ऑब्वियसली इनमें बॉन्ड जो है उसका नेचर भी चेंज होगा। जैसे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो कैसे बनता है वो सब हम डिटेल्स में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे, आज नहीं देखेंगे। लेकिन बिफोर आई एंड द क्लास I just told you कि lipids are different. Lipids, how are they different? I'll tell you. Lipids, by definition, what are they? They are, any fat. How can you define a fat? अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 10 में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था? एवरीवन जो यहाँ पर हो, एक अल्कोहल हम किसको कहते हैं? जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है विच इज OH, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है COOH। ओके, आई सपोज यू ऑल नो दिस। तो यहां से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाता है, यहां से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, सो व्हेन अ अल्कोहल कंबाइंस विथ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, और मैंने ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है? एक्चुअली व्हाट आर फैट्स? फैट्स आर ऐसे लॉन्ग चेन अल्कोहल्स रहेंगे हमारे पास, और ऐसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स रहेंगे। सो आई विल हैव लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड आई विल हैव लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। ये अल्कोहल और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जब एस्टरिफाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं यू नो अ फैट। or this is the basic this is the basic bond that is present in a lipid. So what are lipids? Basic bond, what type of a basic bond is present in lipid? कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन अल्कोहल रहेगा और हमारे पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहेगा, और ये जुड़ जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इट इज नोन एज द ester ester linkage. It is known as the ester linkage. Okay, अच्छा, ये तो हो गया केमिस्ट्री पार्ट। लेकिन अब देखो हमारे सेल में किस टाइप का लिपिड मिलता है। देखो एक मॉलिक्यूल है विच इज नोन एज ग्लिसरॉल, जिसके अंदर 3 OH ग्रुप्स रहते हैं, EH2OH, EHOH, EH2। ये एक OH ग्रुप है, ये दूसरा OH ग्रुप है, ये तीसरा OH ग्रुप। How many OH groups are there? There are 3 OH groups, और इस मॉलिक्यूल का नाम हमने क्या कहा है? इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहाँ पर 3 OH ग्रुप है, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर टोटल कितने एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं? How many ester bonds can be formed over here? 3 6? कैसे? 3 3 3 एब्सोल्युटली। तो ये जो OH है, I can join this with a long chain fatty acid.
I can also join this with a long chain fatty acid, and I can also join this with a long chain fatty acid. तो मैं इन तीनों को मैं ऐसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ जोड़ सकता हूँ. बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर तीन ऐसे एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं. एक, दो, तीन. अब सपोज करो कि एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड है, वन फैटी एसिड, तो उसको हम क्या कहेंगे? आई कॉल दिस मोनोग्लिसराइड. जब एक ही है, देर इज ओनली वन glycerol sorry, there is only one fatty acid molecule. अगर दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? इट विल बी नोन एज अ डाइग्लिसराइड. और अगर ऐसे तीन फैटी एसिड्स जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट. Have you understood the structure of glucose? Sorry, have you understood the structure of lipids? I'll repeat myself. I'll repeat this once again. फिर से समझ लो और एक बार. हमारे पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तीन OH ग्रुप्स हैं. सपोज करो कि हमारे पास एक जो OH ग्रुप है उसको हम एस्टेरिफाई करेंगे टू अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड. आई कॉल दिस अ मोनोग्लिसराइड. ठीक है. सपोज एक के जगह यहाँ पर दो जगह पर ऐसे एस्टर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. सपोज यहाँ पर दो फैटी एसिड्स हैं, तो इसको हम नाम चेंज करके फिर क्या बोलेंगे? आई कॉल दिस अ डाइग्लिसराइड. और सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे तीन फैटी एसिड चेन्स ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड. तुम लोगों ने ऑलरेडी देखोगे, आई सपोज यू पीपल हैव एन आइडिया. तुम ऑयल, जो एडिबल ऑयल से वहां पर हम पढ़ते हैं ना कि पॉली अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, इनके बारे में तुम लोगों ने सुना ही होगा. ये है उनका स्ट्रक्चर. दिस इज हाउ लिपिड्स आर फॉर्म. तो अब तुम मुझे देखो, हमने क्या देखा? बाकी जितने भी फैट सॉरी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है? दे सॉरी, वहां पर क्या होता है? ऐसे मोनोमर्स ऐसे ज्वाइन करके, सेम मोनोमर्स इस तरीके से ज्वाइन करके पॉलीमर्स बनाता है. सेम मोनोमर्स, एक ही चीज बार बार रिपीट होता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? क्या लिपिड्स में? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि लिपिड्स में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा टेथरिंग चीज है, एक ऐसा, व्हाट कैन आई से, एक ऐसा एंकर जैसा जगह है जहां पर जाके एक फैटी एसिड जुड़ सकता है, दो फैटी एसिड्स जुड़ सकते हैं, या मैक्सिमम तीन फैटी एसिड्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिपिड, and this is the structure of the rest of the macromolecules. Clear? How is lipid different from the rest of the macromolecules? Have you understood this? So what I let me just sum up whatever I have taught in today's class. So we were talking about biomolecules in today's class, and biomolecules can be classified into macromolecules and micromolecules. Macromolecules which have size larger than 1000, micromolecules which have size less than 1000. तो जनरली ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, दीज आर मोनोमर्स, और इन्हीं माइक्रोमोलिक्यूल्स के जो पॉलीमर्स बनते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके. एंड वी हैव सीन दैट जैसे माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में हमें अमाइनो एसिड मिलता है जो जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं. देन हमने देखा है कि माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं जो जुड़ के न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं. फिर माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में हमारा वी हैव मोनोसैकेराइड्स जो जुड़ के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं. तो दिस, इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे एक सेल के अंदर, द माइक्रोमोलिक्यूल्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल्स. और मीनवाइल बेसिक मैंने और भी कुछ चीजें बताए हैं तुम लोगों को कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मुझे बोलना है तो फिर
then definitely it should have certain characteristics. So there are certain characteristics which are known as the defining characteristics, and then there are certain characteristics which are known as the non-defining characteristics. One of the major defining characteristics is metabolism. Okay, अब शामो ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे स्टार्टिंग में, तो फिर अगर हाउ डू आई डिफाइन बर्थ एंड डेथ, आई बर्थ on the virtue of reproduction, we define birth on the virtue of reproduction. But एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, because I have talked about metabolism, that means I have talked about anabolism and catabolism. एक सेल के अंदर सपोज ये मेरा एक सेल है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक सेल के अंदर अगर मैं किसी भी रैंडमली अगर मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचूं, तो हमेशा एक चीज याद रखना जरूरी है कि आइदर वो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है या फिर वो मॉलिक्यूल टूट रहा है, राइट? एंड दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल सपोज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज ये मेरा ग्लूकोज है, so either the cell is making glucose, okay, or the cell is breaking glucose. मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया, it can be any molecule, randomly any molecule. So either जितने भी biologically active molecules है, either the cell is making it or the cell is breaking it. हाँ, ये हो सकता है कि the cell is maybe making glucose by 4 different pathway and the cell is breaking glucose by 1 pathway. तो वहां पर क्या होता है, मेकिंग का रेट बढ़ जाता है, ब्रेकिंग का रेट घट जाता है, ठीक है? या फिर किसी और टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है कि द सेल इज ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, मे बी ऐसे 5 अलग अलग पाथवे से वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है और सिर्फ एक पाथवे से ग्लूकोज को बना रहा है, या फिर ग्लूकोज को बना ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दैट केस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि either the cell is making something or the cell is breaking something. तो अगर मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ, आई हैव यूज्ड टू टर्म्स, मेकिंग एंड ब्रेकिंग। तो रैंडमली अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल की बात करूं, ये जो रेट ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग, देर ऑलवेज either it is making more and breaking less, or it is breaking more or making less. And naturally जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनका एक सेल के अंदर एक टर्नओवर रहता है, दिस इज नोन एज द टर्नओवर. So every molecule inside the cell, it has something which is known as the turnover. एक सेल के अंदर अगर जितने भी सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, all these biomolecules, all of a sudden, agar unme neither is it made nor is it broken down, then I say that the cell has attained a state which is known as the equilibrium stage. Suppose the cell is not making something or not breaking something, तो हम कहेंगे the cell is in the equilibrium state, or I will say the cell is in a steady state. और एक सेल जब स्टेडी स्टेट में चला आता है, देन आई से दैट द सेल इज नॉन लिविंग, मतलब उसमें कोई नो टर्नओवर। अगर एक सेल के अंदर कोई टर्नओवर नहीं है, देन आई डोंट कंसीडर द सेल टू बी living. So always remember, metabolism is one of the very, very crucial factors of a cell, and the cell either is always making something or breaking something. The total, so this is what I say, every cell and every biomolecule inside the cell has a certain turnover. मतलब either एक certain time में उसका rate of making ज्यादा है या फिर breaking ज्यादा है. I hope you people have understood this. স্যার Yes. স্যার আপনি বললেন যে ওখানে আপনার ওটা মানে ক্যাটাবলিজম করে অ্যানাবলিজম হয়ে যাচ্ছে, তো সেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে চলে যাচ্ছে। তো একটা টাইমের পর তো স্যার আমাদের যে বোনস এর যে আপনার সেল যেগুলো আছে No, সেগুলো তো no, we আমরা are not. No, 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 দেখতে Shammo. পাবো। I'm talking about molecules. Shammo, I'm not. So, তারপরে তুমি বলছো যে বোনের ক্ষয় হয়, তার মানে अगर bones का deterioration होता है, that means it is breaking it. But again, I'm not talking about structures. I'm not talking about organs. I'm not talking about organisms as a whole. I'm talking about molecules inside the cell. Are you understanding this? We are talking about molecules, the chemical organic molecules that are found inside the cell. We're talking about that. We're not talking about the structures. We're not talking about the organs. Okay. স্যার অনেক কোশ্চেন তো আছে। Mhm.
कि सर वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड और गाइकोफॉस्फोलिपिड Not और here, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड। not here. Glycophospholipids and phospholipids क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे. अभी ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा समझ में शायद नहीं आ रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है. उनको हजम करने दो. थोड़ा सा जो जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, गो थ्रू द स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर लेके बैठोगे एवरीवन. तो वहां पर अभी शामू ने बोला कि फॉस्फोलिपिड क्या है, तो फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है वो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले लिपिड कैसे बनता है वो पहले समझो. ओके, so first learn that because we have class 10 students over here. So if I talk about, just मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो वहां पर जो थर्ड पोजीशन में, जैसे हमने कहा कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड तीनों बन सकते हैं. तो सपोज डाइग्लिसराइड बनता है और थर्ड पोजीशन में इन प्लेस ऑफ अ फैटी एसिड एक फॉस्फेट ग्रुप जाके बैठता है, एंड दैट इज नोन एज अ फॉस्फोलिपिड. So I'll talk about how a phospholipid is formed in the next class. But before that, जो structures मैंने आज के क्लास में बताया है, उसको पहले consider करके बैठो. Shambo, you asked this question to me in your class because this is over here we have class 10 students, okay, 10 and 11 students. उनको समझ में नहीं आएगा. I have ओके got your सर। question. Yeah, yeah. Okay, okay. Any doubt? Anyone? जितना पढ़ाया है उनमें उस पोजीशन में वहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, you can ask me. Sir, in the experiment you talked about the eclipse part. Sir, can you explain that part? एक्लिप्स मतलब क्या है? छुप जाता है. मतलब 1000 मिल रहा है और 10,000 मिल रहा है, बीच में 2000, 3000, 4000, 5000, ये सब तो छुप जा रहे हैं. मतलब तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों. तो उसी का रीजन फाइंड आउट करने के लिए देन देयर वाज अ हाइपोथेसिस कि एक छोटा मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल उससे थोड़ा सा बड़ा है. ऐसा नहीं होता है. रैदर बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल जिसका साइज 1000 है, सपोज 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ते हैं, तो तब हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसका साइज है 10,000. तो बीच के जो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन मतलब मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो छिप जाते हैं, या फिर बेसिकली क्या होता है वो हमें मिलता नहीं है. दिस इज व्हाट आई वांट. Okay, sir. Thank you. Okay. Navajukta, you were asking me something? No, sir. No, sir. Okay, fine. So if you do not have any other doubt, I'll end the meeting then. Okay. जितना पढ़ाया है, these are basic classes. थोड़ा कर करके बैठो and पढ़ के बैठो, and then gradually हम धीरे धीरे will get into the details of the topics. Okay. Good night, everyone.